The visit of this center of Respect. As you know, Respect International is the first and the oldest organization of India which is working for the welfare and dignity and security of the senior citizens worldwide. We had a program of 54th International Award Ceremony in New Delhi on 15th of October. Mahesh Sharma, the Tourism and Cultural Minister, he inaugurated, and 12 outstanding personalities of India were felicitated. Respect International is doing the felicitation and honoring of the senior citizens because we feel that hunger of love, affection and appreciation in the world is much bigger than the hunger of the food. So whatever you are doing, if it is appreciated and they contain the love and affection, it becomes more powerful. On this outside wall, you will see of the senior most citizens of the world outside in the gallery. We have honored the oldest citizens of the world. These are Japan, America, Mexico, and Mauritius, and so many countries. And we have found the persons up to 199 years, 154 years, 132 years, and all like that. In India, we also have the persons who have got more than 150 years. But they are not recognized, they are not identified, so that we have to make the effort to find out the more details. And whatever the experience they have, the medicines they have, so many utilized for the mankind. Anyhow, I will not hear much time here. So, Mr. Shukla, Mr. Sharma and Shukla, so please come and take the mic. We can start. Colonel Naidu sir, should we start? And whatever the Good morning, dignitaries, students, invitees from Vadodara University. And today we all are gathered for our advocacy. It is very opportune time for us that we will discuss on different issues like clinical, social, legal issues which the elderly peoples are facing in their old age life. I would like to invite to come and deliver his presentation on Global Strategy and Action Plan on Aging and Health 2016 and 17. Sir, please come. मैंने सुना था कि गुजरात में दूध बहती है अमूल इंडस्ट्री वेयर इज अमूल इट्स इन गुजरात आप लोग दूध पीते हो नहीं पीते ओके दैट्स ग्रेशियस that's a revelation itself okay never mind a few words about this is one of the oldest senior citizen NGOs an NGO which has been working towards the upliftment, respect and dignity of the senior citizens. I've been with them for the last about 15-16 years and I've been handling the intergeneration programs and primarily to sensitize and create awareness amongst everyone. Today what is happening, why senior citizens have been relegated to because there is no kind of a intergeneration training going on. Okay, like for example, कई लोगों को यहाँ पे पता नहीं है कि दूध पीना होता है, like वो पीते नहीं हैं. So the goodness of milk needs to be told to everybody. It has to be displayed to everybody. Why it is important, why it is healthy, and therefore they would take up to it. Similarly, generations down the line. What has happened is, those Dada Dadi kahanis have finished. I think it finished with us. How many of you stayed with your grandparents? 1, 2,
That's a pretty good number. Okay, thank you. Those stories which I told you in that softer tone, with that total compassion, with that total love of your grandfather or grandmother, those are the ones which have, they are like seeds in your mind. They are like seeds in your heart which sprout. Sowing of these value-based seeds are finished. So I'll take you through a couple of videos before we get on to the main thing, just to orient you towards it. Do you know what is on 1st October? Do you know what is on 1st October? Next one thing more was first and second. Say, the case each month is women's related questions. No, I know it's the second option. I've done it. It's a first October I was doing. First October is Saturday will be. There's an exam. My district, yeah, my district. Oh God, only one of those people who don't know. On this Elders Day in 2011, I think we need also to talk about the positive dimensions of aging. What some authors have referred to as active aging, others have referred to as success. Here we received significant response that the sort of number of complaints that came was Among those complaints, neglect in care facilities, controversial placement decisions, and the closure of facilities. They cut these programs. They have no idea what the effect will have on these people. We're talking about programs that cost a pittance compared to what they deliver. It doesn't make sense. When I saw these people protesting, it took me by surprise. Yes, I always assume that when people get older, they're taking care of a healthier system. To be honest though, it never really occurred to me doctors in the office, acute or hospital care, and home and community care. These services are geared to helping seniors and people with chronic health problems to live well in their own homes and settings like long-term care for seniors. Historically in Canada, most of our focus and funding has gone into primary and acute care. Home and community care has not been part of the Medicare umbrella and have tended to be underfunded and often neglected by governments. So core services most often are what's happening in the hospital or an emergency room. They're the medical services. It ignores or makes invisible all the other things about outreach, exercise, helping people connect with each other, giving people a voice. All those things that we know make a difference in terms of health. They get lost when we talk. A citizen in his 80s, he goes to the hospital in a rush. He's got a wound on his hand. And he doesn't have enough. Who had finished her patients and she was free at that moment. Please. Okay, it takes time to get right.
how many of you know what MDG means? MDG? Oh, wonderful, how intelligent students. Okay. And the MDGs were to be completed by when? By 2015. And now we have new goals, and what are they? Anybody? The new set of goals are known as the Sustainable Development Goals, SDGs, which are supposed to be achieved by 2030. Okay. Now these are the goals which the United Nations makes, and these are sent to all the members of the United Nations, and they formulate their own policies based on that. I don't want to politicize, neither I am a politician or I don't favor any political party, but to ask you, this Swachh Abhiyan which has been launched is whose idea? Mahatma Gandhi? Yeah? Narendra Modi? Yes? Now if you had studied the Millennium Development Goals, it is covered in that. Okay, it is based because this kind of cleanliness, stopping open defecation, all these things were to be achieved by 2015. We have not done it. It has been extended again into the Sustainable Development Goals. So the countries formulate the policies based on that, and it is launched in the country. So similarly in India, it has been launched by the current political, comes from the United Nations. Similarly, coming to aging. Aging is covered, and by 2030, the number of senior citizens or above the age of 60 years is going to increase from at a current rate of around 14% to almost about 20%. There's a lot many senior citizens to have. Focus towards this IDOP. 1st October? Anybody? Yeah, IDOP is and loved ones from hardship, pain and neglect, and set a trend benefiting humanity. The main aspect is to set a trend benefiting humanity. Understanding the process of aging, identifying threats and challenges, and recognizing signs, potential dangers, and planning our own intervention and prevention strategies. Coming years. Today, India is one of the youngest nations. Improvement in our economy is directly related to the number of youth we have, and India is the youngest nation with an average age of around 24. But we need to realize that you all, when you become senior citizens, India would be one of the leading countries where there would be maximum senior citizens. Right? Yeah, next one. Now the process. Today's senior citizens were yesterday's youths, and today's youth is tomorrow's senior citizens. Yeah, next one. The change that we did not notice is that from birth we undergo a process of education and training for 25 years. And for the next 35 years, you're working, you're gathering various skills or polishing them. That continues for 30-35 years, and then at the age of 60 years, span was around 60. You had a good time for a couple of years and then you kicked the bucket. But now what is happening is that people are living 80 years. Have you ever wondered, for 35 years of 35 years second block of adult working age and the third age, whenever you refer to the third age, it is 60 years and beyond. Now here we have three generations. It is built overlap to it. Now the first stage
When the second generation starts, the first generation is in the second stage. Now, when the first generation is entering the third age, the second generation is in the second stage, and the third generation is in the first stage. Now, if you could imagine your own family, all those who are staying with grandparents, you have a grandparent, your parents, and you, 3 generations. Okay. Now, the requirement of the third age is being taken care by whom? Think about it. So, like I said earlier, that the third age was insignificant because people passed away by 70, now 1995. Second generation had the primary responsibility of taking care. Now, all the 3 stages of life are more or less equal. People are already toying with the idea of a fourth age. A fourth age starting in the late 80s to 100 and beyond. Because we all would like to make a century and then only go. Okay, we are not that poor batsmen, are we? Right. Now, next slide. Increased participation in the life of the first and second generation. The second generation life totally revolves around the upbringing of the third generation. And this is where the problem has been created, that the third or the first generation is getting neglected. This you're working, probably your hometown is somewhere, you're working somewhere, you just visit on a holiday and the generation is not able to participate much. That's a cycle which needs to be maintained. Like I said earlier, we are already toying with the idea of the fourth generation. You start hearing. Now, as you people, as you students enter your adult age, you will find yourself caring for and assisting your elderly parents and loved ones. You need to be aware of that, so that you prepare yourself. Subconsciously, if you are aware that I have to take care of my parents, I have to take care of my grandparents, then you would allocate time. The elderly, of course, often turn to their adult children in times of need. The grandchildren who have more time and energy, 3 slides back, please. Yeah, the next one. Yeah. Now, if you see this, come to the third generation. In the first block, in the first age, is the age where you are probably from birth to your PG, post-graduation. Okay. By 25 years you are there, or you're completing your post-graduation. That's the time when there is not much of load on you. Though you may feel that your studies, everything is a lot to do, but if you actually come to think of it, if you have deep conversations with your parents, they will tell you as to how that is a small part of life and the bigger part comes later. Okay, that is why your parents are not able to pay that much of attention to you. Say, after the 10th standard, 10th standard would be about 15 years. So from the 10th standard onwards, when you are aware of what is going about, you are aware of everything. For next 10 years, these 10 years, 15 to 25, you could really devote towards taking care of your senior citizens. The overlap there, which is there. Because at that stage, your parents are also old, they are entering into the 60s bracket, and your grandparents are entering somewhere in the 70s and 80s. Both need your help. Think about it. Yeah, let's go further. Now, aging without reason is any attitude, action, or institution which a person or group because of age, or any assignment of roles in society purely on the basis of age. Like a clear-cut example is firstly of Eros 35. Okay, that you're no longer suited. Or first pregnancy, out. Now these are certain natural processes that are out in the protocol. Take the army for example, from where I come.
We are compulsorily retired at the age of 54. Now today, and further, doctors and specialists, the age would be increased to 65. Fair enough, good responsibility of your children. They would have completed their education and they would be well settled into a job, or they probably would have already got married. But here in the army, what is happening? Your child is just entering that age of 25, looking for a job, okay, and you're retired. See, ageism, but it is a compulsion, the younger person. Right? In America, it's a written down rule that there is one hospital bed vacant, and there are two patients, a senior citizen and a youth. The bed goes to the youth. That is Asian. Here is no differentiation of sex, color. Why so? A person has worked his entire life, he is given the best, and then when he retires, what he gets. That's what is ageism. Yeah, next. Longevity is the most traffic phenomenon that is happening. We really need to go into the depth medical issues. There are certain issues which are need to be done, which are policy based. Countries where the senior citizen population would have risen to 30 years. Shifting from 3-generation societies to the 4th-generation society, like I already told you, is with the parents. It's not with them. Okay. It is just to give them a kind of emotional satisfaction that I am asking you, but this is what will happen. Okay, that kind of attitude, that's ageism again. Yeah, next slide. Now, this is a study where education is 100%, and it's one of the densest districts. Now, the type was noticed, it includes physical, sexual, neglect, and abandonment. The movies that you saw earlier, that in a Mela people get lost, children are left. Similar cases I have seen when I was handling one of the leading hospitals in Agra. Almost every, there was a kind of a large hall which was left vacant for anybody who cannot afford to come and rest. Every 15 days we found a senior citizen who's been neglected there, unlike. In Agra, the rate is much higher in other metros. Yeah, next slide. Now, gender and type of abuse experience, among females, 65.9 experience physical, 61% emotional, and 33.7 financial. Yeah, next slide. With the abuser. This is the point of interest. Sons as sexual, followed by abandonment, emotional, and physical abuse. Next, 42% of sons learning of the son and daughter-in-law or earning, and the entire family is dependent on them. Sons-in-law abandon the parents-in-laws, and majority of them are aged above 40 years. Elderly spouses have been financially abused by forcibly taking away the jewels and household items. Daughter-in-laws threaten and refuse to give their belongings. This is the general thing that has been found in the state of Kerala. The one of why Kerala has been chosen is because it is the most educated, the education is almost 100%. Now, reflecting back to our own common average Indian household. Today, each one of you who's on the verge of getting married or who has seen a recent marriage taking place in the family, what is the first thing that happens? Is separation from the house. Why? Reflect on that, think about that. Okay. Is profession the only answer? Because of which you are going? I know of families who are daughters who are taking care of both her parents and in-laws also. So there are various combinations. Let's take the best of it and overlook the
bad ones or educate them to a level that they give up all these negativities. Yeah, next one. Slab, breastfeeding in one place. Filthy language, vengeance is not letting them use the washroom. Because the working so sorry, you cannot use it till that time. See? Next. Stealing money today has become very, very easy. What are those 4 numbers? What are they known as? PIN number. PIN number of a credit card or an ATM card. The senior citizen doesn't even know where the money is gone. That is how they are being cheated also. Right? There are so many nations who are aware of that, they are not educating the senior citizens. Yeah, next. We already covered this. Next. Family members busy with their phone. Their needs are met with a total indifference. Next. You may not be there. That is the place where you could launch a scheme or you can encourage adoption of grandparents. Okay. Maybe any grandparent in the colony, wherever you are living. Earlier, the thing used to be that whenever in the morning you get up, any senior citizen, anybody with grey hair, you wish him. Isn't it? That takes place. But the moment you go into a metro, what happens? You start looking the other way. Let's continue with that kind of thing. That brings a lot of bonding. One good morning from your side would make the entire day for that senior citizen. Yeah, next. Suggestion to overcome ageism, state initiative, community policing, provide opportunities, pension schemes, measures to check snatching of properties from the elderly. Next. Media coverage from your busy schedule of seeing the Taj and Fatehpur Sikri and listening to this kind of a lecture where we spread awareness. In 1962, the oldest Japanese person was born. At that time, it was realized. Okay. Down these ages, what we've been trying to do is create awareness. Right? Yeah, next slide, please. So, what the ILP, right? जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं नॉर्मली वो अपने फिजिकल बॉडी मतलब अपनी बॉडी में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस को फील करते हैं, है ना? और वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस को हम लोग जिस ब्रांच में पढ़ते हैं साइंस की विच इज नोन एज जेरियाट्रिक्स। और बीइंग अ यूथ नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने सीनियर सिटीजन्स को एल्डर्स को किस तरीके का केयर प्रोवाइड करेंगे। जेरियाट्रिक प्रॉब्लम्स, दिस इज द नॉर्मल फिनोमेना। एवरी इंडिविजुअल लाइक वी आर द यूथ, एक टाइम के बाद हम सब इस चीज़ को फील करेंगे, एवरी वन ऑफ अस, हम सबको इस चीज़ को फेस करना है। तो वी शुड नो कि क्या प्रॉब्लम्स जो आगे बढ़ रहा है और बीइंग अ यूथ व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाउ विल गिव केयर टू देम सो दैट कि दे विल कोप अप दैट फिजियोलॉजिकल एंड दैट साइकोलॉजिकल चेंज व्हाट दे आर प्रॉब्लम्स व्हिच ऑल द पर्संस ईदर यू मी एंड द पर्संस हु आर। कितने लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स उनके साथ रहते हैं और दे हर्ड कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू? तो ये क्या है, उनका फिजियोलॉजिकल चेंज है, क्योंकि हम लोग के साइनोवियल फ्लूइड में क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। डायबिटीज हो सकती है, सिर्फ एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। के बाद रिटायरमेंट से पहले जो लोग पूरे टाइम इंगेज रहते थे उसके बाद 65 ईयर या 60 ईयर्स के बाद रहता है जिनके साथ वो अपनी पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। जो अभी तक उनका अपना एक लाइफ साइकिल बना हुआ था कि सुबह उठना है, ये काम करने के लिए जाना है, दैट हैज बीन चेंज। अब उनको जो भी टाइम देना है, मैक्सिमम टाइम देना है अपनी फैमिली को। मोस्टली जितने सीनियर सिटीजन हैं वो ऐसा करते हैं और बहुत सारे बहुत एक्टिव होते हैं जो अपने एनजीओ स्टार्ट करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि नहीं हम वी आर एक्टिव। क्योंकि एक तरीके से एज फैक्टर क्या होता है कि जब हम फील करते हैं कि हम बुजुर्ग हो गए या बुढ़े हो गए तभी
उस चीज़ को फील करेंगे। अदरवाइज जो है एज बहुत सारी चीज़ों में मैटर नहीं करता है, लेकिन जो फिजिकल चेंजेस हैं उसको हम लोग डिनाई नहीं कर सकते हैं, और ये हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। कोई 35 की एज में खुद को बूढ़ा महसूस करने लगेगा और कोई 95 का होकर भी बहुत अच्छे से सारे काम कर सकता है, तो ये इंडिविजुअल पर भी डिपेंड करता है। मच बिग इशू जिसकी वजह से इंसान जल्दी बुढ़ा हो जाता है, क्योंकि उसको वो रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, वो मेडिकल केयर नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को हेल्दी रख पाए। इसकी वजह से लोग खुद को जल्दी बुजुर्ग महसूस करने लगते हैं। अच्छा, व्हाट इज पीडियाट्रिक केयर? एवरीवन नोज केयर इज द मेन इंग्रेडिएंट व्हिच मेक्स अ रिलेशन अलाइव जाएगा। और आपके पेरेंट्स बीइंग अ यूथ, अगर हम अपने पेरेंट्स से भी थोड़े हार्श वर्ड में बात कर लेते हैं तो उनको बहुत बुरा लगता है। तो हम लोग को बहुत ही सिंपैथेटिक वे में, बहुत ही सिंसियर वे में अपने एल्डर पीपल की केयर करना ज़रूरी होता है। हम उनको केयर करें, लेकिन साथ में उनको ये एहसान भी जता दें कि नहीं भाई, हमने तो आपके लिए ये कर दिया, आपने जो हमारे लिए किया है उनका एहसान उन्होंने कभी नहीं जताया। कभी आपके पेरेंट्स ने आपसे कहा है कि तुम्हारी स्कूटी के लिए मैंने अपनी कोई ड्रीम जो है सेक्रीफाइस की है? दे नेवर सेड। आपके इस एडमिशन के लिए जो है मैंने अपनी सैलरी सेक्रीफाइस की है? दे नेवर सेड। तो जब बीइंग अ यूथ हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो अगर हम किसी अपने एल्डर वन के लिए कोई गिफ्ट भी लेके आते हैं तो हम उनको ये एहसान जता देते हैं कि हमने आपके लिए ये खरीद के दिया था, विच इज़ वेरी बैड। तो वी शुड नेवर से लाइक दिस, क्योंकि इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें उनकी केयर करनी है। What are the main physical changes which an elderly people feel? सबसे पहला सिम्टम बॉडी में अपीयर कौन सा स्टार्ट होता है? वाइट हेयर्स, ग्रे हेयर्स, ओके। बट नाउअडेज ड्यू टू पोल्यूशन ये थोड़ा सा और जल्दी हो रहा है, 30, 35, 40। और स्किन, हमारी स्किन के रिंकल्स हमको सबसे पहले शो करना स्टार्ट करते हैं कि यस, नाउ आई एम गेटिंग ओल्ड। So what are the physical changes? Most physical changes that occur with aging are gradual and take place over a long period of time. मतलब बहुत टाइम लेके धीरे धीरे से, हमको पता भी नहीं चलता है कि हम 45 के हुए और हमारी एजिंग होना स्टार्ट हो गई है। इंडिविजुअल में डिपेंड करता है, किसी किसी का जो न्यूट्रिशनल मोड होता है लेने का, जो उनका रहने का तरीका होता है, जिसकी वजह से एजिंग फैक्टर कई बार इंक्रीज हो जाता है। लेकिन द पर्सन हु इज लिविंग इन अ पॉवर्टी पोजीशन, उनके लिए एजिंग फैक्टर जल्दी हो जाता है, फिजिकल चेंजेस बहुत जल्दी उनमें अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। आई थिंक एवरीवन नोन अबाउट द बॉडी सिस्टम। हम लोग की बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं। होपफुली इंस्टीट्यूट के बच्चे दे ऑल आर नोइंग एंड एवरीवन एल्स आर नोइंग। सो व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस व्हिच इंडिविजुअल फील्स? एज आई टोल्ड यू, स्किन में कुछ चेंजेस होते हैं। व्हाट आर दोस चेंजेस? हमारी स्किन में नई सेल का जनरेशन स्टॉप नहीं है, वो ऑयल सिक्रेशन कम कर देती है, जिसकी वजह से एक ग्लो होता है स्किन में। जब व्हेन वी आर यूथ वी हैव आवर ओन ग्लो, जो टाइम के साथ डिनाई होता जाता है। हेयर लॉसेस, एज द एज इंक्रीजेस हेयर ग्रे हो जाएंगे, वाइट हो जाएंगे, हेयर लॉस स्टार्ट हो जाएगा। स्किन बिकम लेस इलास्टिक एंड ड्राई and itching is common. So these are the physical. Now being a youth, what is our responsibility? As we all are gathered here to learn something new. So what is our responsibility to give care to our elder person whom we are living? Next slide. क्या करना है हमें अपने पेरेंट्स के साथ, या जो एल्डरली पीपल हैं उनको मेडिकेटेड सूप यूज़ करने के लिए देना है। उनसे ये नहीं बोलना है कि जो हार्श सोप से हम यूज़ करें, या फिर हम लोशन देंगे। हम उनकी ऑयलिंग करने का काम खुद कर सकते हैं। पुराने टाइम में बहुत अच्छा हम लोग का सिस्टम था कि पुरानी जो बहुएं होती थी वो रात को मालिश करती थी अपनी सास के। नाउ दिस हैज़ बीन गॉन। अब ऐसा बहुत रेयर एंड रेयर होता है, पर ऐसा है वो ऑयल सिक्रेशन डिक्रीज कर चुकी हैं। तो अगर हम उनको बाहर से ऑयलिंग देंगे तो उनकी स्किन का जो ड्राइनेस है वो सही हो जाएगा। उसके अलावा चूंकि हमारा स्किन जो है ओल्ड एज में क्या होता है, ड्राई हो चुका है, उसका सेंसिटिविटी जा चुका है, उसमें न्यू सेल्स नहीं जनरेट हो रही हैं, तो पीपल फील कोल्डनेस। बूढ़े लोगों को ठंड ज़्यादा लगती है। तो बीइंग अ यूथ पर्सन, बीइंग अ केयर टेकर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमको देखना है कि हमारे एल्डर पीपल्स जो हैं उनको कोई इस टाइप का प्रॉब्लम तो नहीं है, उनको सॉक्स पहना के रखना है, उनको आराम से बैठ सकते हो। लेकिन हमारे घर के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड मदर्स हैं, दे कैन नॉट सिट, उनकी जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाता है।
तो आप ये नहीं बोलो भाई कि अरे हम तो एसी में बैठे हैं, आपको तो कितना प्रॉब्लम होता है, आप एसी बंद नहीं करवा देते हो। नहीं, ये उनका फिजियोलॉजिकल चेंज है, ये हमको समझना है। हम बिना एसी के रह सकते हैं थोड़ी देर के। यूथ, इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन से फिजिकल चेंजेस उन लोग फील कर रहे हैं और किस जगह हम उनके साथ अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जो एल्डर्स लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, दे आर लिविंग हेल्दी लाइफ, इट इज वेरी गुड, बट फ्यू दे आर सफरिंग फ्रॉम सम डिजीजेस। किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी के बैक एक में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को बैठने में दिक्कत हो सकती है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बेड पे लेटा दिया जाता है, उनके हाथ कांप रहे होते हैं, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, और मैक्सिमम टाइम वो क्या करते हैं, उनको बोला जाता है चलिए आप आराम कर लीजिए, राइट। अब हमने कह दिया कि आप जाके आराम कर लीजिए, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे ओवर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इफ अ पेशेंट हु इज लाइंग या इफ अ पर्सन हु इज लाइंग मोर देन 2, 3, 4, 5, 8 आवर्स, उसको सोर्स हो जाते हैं। होपफुली यू पीपल आर नोइंग अबाउट सोर्स, वुंड्स हो जाते हैं। हम लोग की बॉडी में डिफरेंट जगह पे कुछ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। यू पीपल नोन अबाउट द एक्यूप्रेशर? यस। जिसमें हम लोग प्रेशर देते हैं तो हमारे को पेन रिलीव हो जाता है। दीज आर द प्रेशर पॉइंट्स, जिन जगह पे प्रेशर पड़ता है। अगर कोई भी एल्डर पीपल 8 घंटे 6, क्या होगा कि प्रेशर की वजह से वहाँ पे वुंड हो जाएगा, घाव हो जाएगा, और इफ वी आर नॉट टेकिंग केयर, वो सा जो वुंड था वो बड़े से सोर में डेवलप हो जाएगा। तो बीइंग अ यूथ, बीइंग अ केयर टेकर, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे घर के पेरेंटल लोग अगर इफ दे आर लेइंग इन अ बेड, तो हमें क्या करना है कि हर 2 घंटे में उनको एक कलवट दे देना है। अगर वो एक पोजीशन में है तो थोड़ा सा उनको दूसरी पोजीशन में हमको शिफ्ट कर देना है। और इन केस के लिए अगर उनको सोर हो गया है तो एज वी आर नॉट, सो मेनी ऑफ आर दी हेल्थ वर्कर्स, वी नो कि हमको ड्रेसिंग कैसे करना है, लेकिन एवरीवन नॉट। लेकिन घर में हमारी कुछ चीज़ें अवेलेबल रहती हैं जिसको हम लोग एज अ सोर ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। तो आई शुड गिव यू द नेम। टर्मरिक, हल्दी एक बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है, होम मेड रेमेडी है। शहद बहुत अच्छा होम मेड रेमेडी है, जिनको इन सोर्स के ऊपर लगाने से सोर्स के घाव कम हो जाते हैं और धीरे धीरे हीलिंग भी हो जाता है। पर ऑलवेज बी रिमेंबर, हीलिंग तब होता है जल्दी जब हमारे पेरेंट्स को उसकी फैमिली का केयर मिल रहा होता है। इफ ही इज नॉट गेटिंग केयर, कोई भी वुंड बहुत जल्दी हील नहीं हो सकता। इवन बहुत छोटी सी बीमारी भी उनकी बहुत जल्दी रिकवर नहीं हो सकती, बिकॉज केयर इज द मेन इंग्रेडिएंट which makes a relation alive. We are getting old, हमारा हार्ट जो है वो उतना तेजी से काम नहीं, एरिया है वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से अब हमारी बॉडी, हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेना है किसी भी काम को करने के लिए। तो है ना, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि आप तो बहुत जल्दी थक जाते हैं, हम तो बहुत काम कर लेते हैं। ये उनका फिजिकल चेंज है। Being a youth, it's our responsibility to understand what the physiological changes occurring in their body. We cannot blame them कि आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। It's our responsibility to understand कि वो ऐसा इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, और हमको ये चीज़ उनको रियलाइज नहीं करवाना है कि आप बूढ़े हो गए हो इसलिए आप ये काम नहीं कर सकते। नहीं, हमें आपके साथ खड़े होकर काम करना है। When we were the small children, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे साथ खड़े थे हमको हर चीज़ सिखाने के लिए, राइट और नॉट। हमें चलाने के लिए भी वो थे और हमें खिलाने के लिए भी वो थे। तो why not we? पर I must say कि अब यूथ चेंज हो रहा है। Now they are giving care to their elder people. इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, सर्कुलेटरी प्रॉब्लम उनको है, उनके हार्ट में ट्रबल है, हमें उनसे स्टेनस एक्सरसाइज नहीं करवानी चाहिए। हमें उनको थोड़ी थोड़ी देर में कहना चाहिए कि आप आराम कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे घर के पेरेंट्स या एल्डर पीपल्स ऐसे होते हैं जिनको चूंकि हमेशा काम किया है, उनको हमेशा वर्क करने का आदत है, 60 की एज तक उन्होंने हमेशा काम किया, तो दे कैन नॉट सिट इन अ चेयर। आप उनको नहीं बैठा सकते, वो घूमने निकल जाएंगे और कुछ और काम में बिजी रहेंगे। तो लेट देम बिजी, लेकिन उनको क्या रिकॉल करा रहे हैं, आप प्लीज थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद काम करिए। और जितने भी ओल्ड पीपल होते हैं उनको लो सॉल्ट डाइट दी जाती है, लेस फैट डाइट दी जाती है, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हमेशा कम रखने का कोशिश किया जाता है ताकि उनको कोई और मेडिकल प्रॉब्लम ना हो। What are the respiratory changes which adult people feels? Respiratory muscles become weaker, rib cage more rigid, alveoli thinner, decreased exchange of gases, जिसकी वजह से जितने भी बुजुर्ग लोग होते हैं उनको डिस्निया का प्रॉब्लम होता है। डिस्निया मीन्स ब्रीथिंग डिफिकल्ट, उनको सांस लेने में दिक्कत होता है, उतना तेजी से सांस नहीं ले सकते। आप उनको बहुत ज़्यादा चलने को बोलो तो थोड़ी दूर चलने के बाद भी उनको सांस को लेने में ट्रबल होने लगता है।
सो उनके लिए हमको क्या केयर करना है? Can anyone tell? From Pushpanjali? Yes, sir? सर एकदम उनको अपने काम को वहीं पे रोक देना चाहिए। हमें ऐसी जगह ले जाने से अपने पेरेंट्स को बचना चाहिए जहाँ पे हैवी क्राउड हो, क्योंकि हैवी क्राउड में उनको सफोकेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। या कोई ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा इस टाइप का माहौल हो, जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो, या जहाँ पहाड़ी जगह पे कहीं हिल स्टेशन पे उनको ले जाना हो, तो ऐसी जगह हमको अवॉइड करनी है इफ आप पेरेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी। ओके, व्हाट आर द नर्वस सिस्टम चेंजेस? सारे के जितने भी एल्डरली पीपल्स होते हैं उनको भूलने का प्रॉब्लम, डिमेंशिया का प्रॉब्लम हो जाता है। तो बीइंग अ यूथ इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी कि उनको पहले से ही उस एक्सरसाइज में मेंटेन करके रखें ताकि उनको भूलने का प्रॉब्लम ना हो। हियरिंग लॉस हो जाता है, उनके ईयर ड्रम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एल्डरली पीपल्स को चीजें एक बार में सुनाई नहीं देती हैं। तो इफ दे आर नॉट हियरिंग इन अ वंस, तो आपको अपनी बात को बार-बार रिपीट करने में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम चेंज होता है। किस तरीके से चेंज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? हमारे जूसेस का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसकी वजह से हेल्दी जो एल्डर पीपल्स होते हैं वो वैसा खाना नहीं खा सकते जैसे कि यूथ जनरेशन ईट करता है। तो उनके लिए उसी टाइप की केयर देनी चाहिए, उनको उसी टाइप का खाना देना चाहिए जिनको उनका स्टमक अच्छे से डाइजेस्ट कर सकता हो, लाइक लिक्विड सूप्स एंड द थिंग्स व्हिच कैन बी इजीली डाइजेस्टेड बाय द पीपल्स। जिसकी वजह से बहुत सारा डिप्रेशन, ओल्ड एज वाले लोग जो लोग होते हैं उनको बहुत सारा डिप्रेशन होता है, उनको छोटी सी बात भी हार्ट पे पिंच हो जाती है और वो उस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। तो नाउ इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी, वो अगर छोटी छोटी बात का बुरा मान रहे हैं तो उसके लिए वो रिस्पांसिबल नहीं है, उनके अंदर जो हार्मोन्स बह रहे हैं वो। साइकोलॉजिकल चेंजेस, एज बीइंग अ ओल्ड पर्सन उनको बहुत सारा साइकोलॉजिकल, उनके पास काम करने का वो कैपेबिलिटी नहीं रहता है, तो खुद भी बहुत सारा स्ट्रेस कोप अप कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं कर पाते। जो कोप अप कर लेते हैं दे आर वेल एंड गुड, लेकिन अगर हमारे एल्डर पर्सन्स इस स्ट्रेस को कोप अप नहीं कर पा रहे हैं तो बीइंग अ यूथ इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी कि हम उनको हमेशा अपना केयर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करें। What are the psychosocial care? What we people can give? We should give our time, our affection, our love and care to our elderly person. What are the main social issues affecting elderly? अच्छा, कोई भी मेडिकल केयर तब तक अपना काम अच्छे से नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास फैमिली केयर। कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ अपना एक वेरी मेजर सोशल इशू, रिसर्च में ऐसा बताया 60% of Indian population family they are suffering from this तरीके से family के in-laws the notion of living with all their son and daughter-in-law they feel there's being a daughter-in-law what I am following है कि समाज में सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा है, तो हमेशा बुरा ही करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो केयर करके चल रहे हैं। तो I'm just going to so many girls are sitting and they these tips in your life, तो आपका भी फैमिली लाइफ बहुत अच्छा रहेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब क्या है? जब फैमिली में जा रहे हैं तो हमें बहुत सारी चेंजेस अपने हुई है, हमारे पेरेंटलहुड में वो बहुत ही फ्री हुई है। हो सकता है कि हमने कभी घर में खाना भी नहीं बनाया, मे भी, क्योंकि अब हम सब भी पढ़ रहे हैं तो हमने भी कभी खाना नहीं बनाया। लेकिन इफ वी आर गोइंग टू अनदर फैमिली, नाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर पेरेंट्स, और क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके ससुराल की मदर इन लॉ, फादर इन लॉ आपसे बोले कि आप ये काम नहीं कर सकते? तो इट लुक्स वेरी बैड। तो बीइंग अ डॉटर इन लॉ, इवन आई डोंट नो एनीथिंग, द वी विल लर्न एंड आई विल डू। तो इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हमारा इन लॉ से रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। बिटवीन योर पार्टनर एंड योर पेरेंट्स, कभी भी पेरेंट्स के बीच में गलत, उन्होंने किसी और नजरिए से आपको कोई और बात बोला और हमने किसी और नजरिए से द पर्सन हु आर रिस्पांसिबल जो अपनी पीस को मेंटेन कर सकते। इफ वी आर मेंटेनिंग द पीस दैट मींस कि हम लोग अपने पेरेंट्स का एक टाइप का केयर कर रहे हैं। बीइंग अ गर्ल, हमें हमेशा मदर इन लॉ को अपना मदर समझना चाहिए। अगर हम ऐसा फील करने लगे, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई मेरी माँ चाहे वो कितनी भी टफ है, हम उनका दिल जीत
हमें ये पता चल जाता है हम जब किसी जगह शादी होके जाते हैं कि कौन सी चीज़ हमारे पेरेंटल लॉ को बुरी लगी। नॉट चेंज दोज पीपल, हम लोग उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने आप कर सकते हैं ना कि ताकि इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है कि हर एल्डरली इवन वी आर यूथ तब भी हमें अपने जूनियर से रिस्पेक्ट चाहिए होती है, राइट ना? एग्री हो ना कि किसी को नहीं चाहिए आपसे कोई भी बोल के कैसे भी चला जाएगा आप चल दोगे, नहीं ना? इवन अपने जूनियर से भी हमको रिस्पेक्ट चाहिए ना? से यस और नो? तो फिर वो तो हमारे एल्डर पर्सन हैं, दे हो सकता है वो बहुत सारी जगह गलत, पर डायरेक्टली हम लोग उनको कभी भी कम्युनिकेशन एज वी ऑल नो दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन, एक होता है नेगेटिव कम्युनिकेशन। तो वी हैव टू मेंटेन अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन इनसाइड अ फैमिली सो दैट वी कैन मेक अ ब्रिज बिटवीन फैमिली मेंबर्स। हमको किसी फैमिली में जाके फैमिली को तोड़ना नहीं है, हमको फैमिली को साथ लेके चलना है। न्यूक्लियर फैमिली के अपने फायदे हैं, लेकिन ज्वाइंट फैमिली के भी अपने फायदे हैं। तो हम किसी भी चीज़ की डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों को लेके साथ में चलना चाहिए। जो आज के जनरेशन में होंगे एल्डर्स, राइट और नॉट? अपने फ्रेंड से पूछ लिया, सबसे पूछ लिया और काम हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू गो एंड टेक एडवाइसेस फ्रॉम योर पेरेंट्स? 50%, है ना? अपने पेरेंट्स के लिए एटलीस्ट दे हैव एक्सपीरियंस, दे विल टेल यू कि तुम ऐसा करोगे तो तुमसे गलत हो जाएगा। तो एटलीस्ट हम अपना टाइम तो सेव कर पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सेल्फिश हो सकते हैं, तो हम खुद को टाइम बचा के कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। बड़ों की एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी होता है। अब आपको ठीक लगे आप उसको फॉलो करें या आप उसको फॉलो ना करें, पर ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम योर पेरेंट्स। और हम अपने मदर इन लॉ की बहुत टेक केयर करेंगे, लेकिन अगर हमारी मदर इन लॉ ही थोड़ी डिफिकल्ट हुई या मेरे फादर इन लॉ ही थोड़े डिफिकल्ट हुए, देन व्हाट वी विल डू? तब भी हमको क्या करके चलना है? उनकी टेक केयर करके चलना है। हमारे फादर इन लॉ बड़े डिफिकल्ट हैं, वी कैन नॉट ट्रीट हिम लाइक नॉर्मल पर्सन। तो हमें ये भी पता चल जाता है जब हम किसी के साथ रह रहे होते हैं इनको कैसे ट्रीट करके काम किया जाएगा। तो सिचुएशंस को अवॉइड करिए। जब आपको पता है कि ऐसा करने से माहौल खराब हो जाएगा तो ऐसे सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहिए। डायरेक्ट अब्यूजिंग से बचना चाहिए। हिंदी में कहावत है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा होए, औरत को शीतल करे आपा को शीतल होए। तो हमें भी इसी चीज को फॉलो करना है। ट्रिगर को हमें अवॉइड करना है जिसकी वजह से घर में या पेरेंट्स को हर्ट वैसा फील करें कि दे आर लोनली, उनको कोई सुनने वाला नहीं है, उनको कोई समझने वाला नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी अच्छे हैं और बच्चे भी अच्छे हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी घर की बन जाती है कि चीज़ें बहुत खराब हो जाती हैं। तो अगर हम ऐसे सर्कमस्टेंसेस को अवॉइड करेंगे तभी वी आर गिविंग आवर अफेक्शन, आवर केयर टू आवर पेरेंट्स। दीज आर द मोड ऑफ showing our love and care to our parents if we are avoiding the harsh situations. How many of you agree? How many of you know about this phrase? कई बार चुप रहना बहुत अच्छा होता है। रिलेशन इस सारे सिनेरियो से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बीइंग अ कभी कोई इंसान घटता नहीं है। तो बीइंग अ यूथ हमें जो हमारा एटीट्यूड और जो ईगो है वो एटलीस्ट पेरेंट्स के लिए नहीं रखना चाहिए। कह रहे होते हो, आपको पता होता है कि किन किन चीज़ों पे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कि पर्सनल फ्रीडम पे हो सकते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू मेक अ ब्रिज, ट्राई टू पॉजिटिव कम्युनिकेशन विद योर इन-लॉज सो दैट यू। अच्छा, ताली दोनों हाथ से बजती है, राइट? तो सो मेनी एल्डरली पर्सन्स आर हियर, सॉरी टू से अब थोड़े से पॉइंट्स जो है वो अगर इन लोगों की तरफ से भी एफर्ट्स में लगाए जाएंगे तो आई होप कि जो हमारी 21वीं सेंचुरी है उसमें हमारी सोसाइटी में जो एटलीस्ट ओल्ड एज में वही लोग जाएंगे जिनका कोई टेक केयर करने वाला नहीं है। टेक केयर करने वाला इधर डॉटर इज प्रेजेंट और सन इज प्रेजेंट, हम लोग साथ में रह सकते हैं। और अगर हम साथ में नहीं रह सकते हैं तो हमारे पास ऐसे मोड्स हैं कि हम लोग आपस में कम्युनिकेट करके उनको केयर दे सकते हैं, है ना? वीडियो चैटिंग है, हम लोग डेली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एटलीस्ट 10 मिनट का टाइम हम सबको निकाल सकते हैं कि हम उनसे कम्युनिकेट कर लें, उनकी प्रॉब्लम्स को शेयर कर लें, ऑनलाइन उन तक मेडिकेशंस पहुँचा दें। बहुत एडवांस हो चुका है अपना टेक्नोलॉजी, वी कैन यूज दिस टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट विद आवर पेरेंट्स। जो है वो बहुत अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, इफ न्यू डॉटर इन लॉ कम इन योर फैमिली, यू स्टार्ट कंपेयरिंग। उसकी बहू तो बहुत अच्छी है, उसको तो सब कुछ पहले से आता था, आप
आप ये भूल गए कि उसकी अपब्रिंगिंग थोड़े डिफरेंट तरीके से हुई है। वो जिस घर से आई है, जिस कल्चर से आई है, उसमें सारी चीज़ें हो सकता है बहुत डिफरेंट तरीके से होती हो, तो उसको कम से कम सीखने के लिए कुछ टाइम तो दीजिए। आप आए, उसकी बहू तो ऐसे कर लेती, उसकी बहू तो ऐसे कर लेती, आपने अपनी तरफ से एक नेगेटिव इम्पैक्ट उस डॉटर इन लॉ को दे दिया। जब आप पहले से उसको नेगेटिव कर दोगे तो वो कुछ पॉजिटिव करने में रिटार्ड हो जाएगी। ऐसे होता है ना, अगर हम गाड़ी चला के जा रहे हैं और बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाए तो हमारी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर हमें इन लॉज की तरफ से पहले से ही नेगेटिविटी रिड्यूस होने लगेगी तो हमारा जो अंदर का विल पावर है, अंडरस्टैंड कि अब जनरेशन चेंज हो चुकी है, जो आपके टाइम में होता था वो इस टाइम में नहीं हो रहा है, तो आपको भी थोड़ा सा चेंज होने का जरूरत है। नहीं कर सकते आज के टाइम में हर एक को रिस्पेक्ट चाहिए, एल्डर पर्सन हो या आपके सन की शादी हो गई है या डॉटर की शादी हो गई है, तो आप उसको बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते थे जैसे आप शादी के पहले करते थे, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिनेरियो एंड टाइम हैज बीन चेंज। तो ये एडजस्टमेंट बीइंग अ एल्डर भी करना होगा और बीइंग अ न्यू कमर भी हमको करना होगा। और बहुत अच्छा है, इसको मैं पर्सनली फील करती हूँ कि पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट हर एक को देना चाहिए। अगर आपकी बहू कुछ अच्छा कर रही है आप तुरंत अप्रिशिएट कर दीजिए, अगर आपकी सास ने कुछ अच्छा किया है तो आप तुरंत अप्रिशिएट कर दीजिए। बिटवीन दी मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ, मदर पेरेंट्स, बहुत अच्छा ब्रिज जो है बन जाता है। एक और सबसे बड़ा हमारी न्यूक्लियर फैमिली हो रही है लव मैरिज। बच्चे अपनी पसंद की शादी करके ले आते हैं, पेरेंट्स हाँ तो कर देते हैं, लेकिन वो हाँ जो होती है ना वो ऊपर मन से होती है, जिसकी वजह से वो उस चीज को स्वीकार नहीं पा रहे हैं, वो उसकी चॉइस को पसंद नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप किसी चीज को लेके पहले से नेगेटिव हो गए हो तो आपको हर एक में कमी ही, ऐसा होता है ना, अगर हम किसी चीज में कमी ढूंढना स्टार्ट करते हैं तो हमको सिर्फ उसमें कमियां दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर हम किसी में पॉजिटिव एक पॉइंट भी ढूंढ लेते हैं तो धीरे धीरे चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं। तो बीइंग अ एल्डर, रिस्पेक्ट कि आपके बच्चे ने किस चीज को पसंद किया है, और पसंद किया है तो एटलीस्ट उसको एक चांस जरूर मिलना चाहिए, इससे भी हम लोग के बीच का रिलेशन हमेशा मेंटेन रहता है। We'll discuss about 2 points, geriatric care and how we will maintain our relation with in-laws. So if we are in home, we are the care provider, हमको क्या करना है, उनमें जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको समझना है और उस राइजिंग देना है। उनको ठंड लगता है तो उनको उस हिसाब का एटमॉस्फेयर देना है कि वो उनको एसी में नहीं बैठाना है। अगर उनके जॉइंट्स में पेन है तो उसके लिए हम जो भी हैबिलेशन सेंटर्स हैं, जो भी एक्सरसाइज हैं, जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो आपकी उनकी थोड़ी मदद कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हमारे एल्डरली पर्सन हैं उनको क्या चाहिए, उनको हमसे सिर्फ टाइम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, केयर चाहिए एंड लव चाहिए। इतनी चीज़ें अगर हम उनको दे पाते हैं तो हमने समझ लीजिए बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर लिया। वी आर गिविंग our love, our affection, our time and our care to the persons जिन्होंने कभी भी हमको ये सारी चीजें देते समय एक मिनट भी नहीं सोचा होगा कि हम ये चीजें अपने बच्चों को दे रहे हैं। My side, I think it is the best feeling in the world is to know that you agreed. Before ending my discussion, I am inviting Priti Madam to come on stage. We are going to represent a very small real project skit which is showing the positive change in our society. How daughter-in-law now a scenario now in this time how they are behaving. Please come madam. पुष्पांजलि नर्सिंग कॉलेज से आए तो करना चाहते हैं। ऐसे हैं जो बस उसी को दर्शाने के लिए कुछ हम करें। बताइए। बात करो। अब यहाँ करा लो, क्या करा? यहाँ करा लो। काम तो बाद में करते रहना। मैं इतनी दूर बैंगलोर से आता हूँ तो मुझे सोचना चाहिए ना कि तुम्हारी फैमिली है मेरी मम्मी पापा भी दोनों ने देखना है, उनकी भी केयर करनी है। तो आप बता दीजिए मम्मी पापा के पास तो हमेशा रहती हूँ ना, तो 2 मिनट मुझे दे सकते हो। मैं इतनी दूर से आता हूँ बैंगलोर से जॉब करके यहाँ पे 5 मिनट देने चाहिए। अच्छा बताइए, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं सोच रहा था कि बैंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं, आराम से रहेंगे और मम्मी पापा यहाँ पे रह लेंगे। मैं उनका अरेंजमेंट यहाँ करा जाऊँगा और हम दोनों वहाँ पे रहेंगे। नहीं, मैं तो मम्मी पापा के साथ ही जाऊँगी और उनका भी ख्याल कौन रखेगा, वो भी अकेले रह जाएंगे फिर यहाँ पे, और खाना वगैरह इस वजह से उनको भी साथ लेके जाऊँगी। रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अरेंजमेंट अच्छे से कर जाऊँगा, हम दोनों साथ में चल रहे। आपको जाना है तो आप अकेले चले जाइए, मैं मम्मी पापा को ही लेकर जाऊँगी। ओके, फिर उससे पूछ लो, तैयारी कर लेना, फिर उसके देखो एक बार।
बेटा तो कोई झगड़ा तो नहीं हो गया तुम्हारा? नहीं कोई झगड़ा नहीं है, बस आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। क्या बात है, बोलो। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप मतलब हम लोग के साथ बेंगलोर शिफ्ट हो जाइए, वो आपके बेटे बोल रहे हैं इस वजह से। अरे बेटा हम वहाँ जाके क्या करेंगे, तुम्हारा ना बिना फालतू का खर्चा हो जाएगा वहाँ जाके। तुम लोग दोनों जाओ, हम लोग ही क्या कर सकते वहाँ पर। नहीं आप लोग चलिए, तो आप लोग हम लोग के साथ भी हमारा भी मन लगा रहेगा, और आप लोगों का भी, और यहाँ काम कौन करेगा, आप लोग की देखभाल कौन करेगा, इस वजह से। बेटा तुम बहुत जिद करती हो, मैं तुम्हारी बात को टाल नहीं सकती हूँ। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करके बताते हैं। बता देना, मैं खा उसी को बोल दिया तुमने। सोच तो रहे हैं, वैसे हमारी बहुत देखभाल करती है, बहू नहीं हमें बेटी मिली है। ये बात तो सही है। चलो देखते हैं। के बीच में बातचीत होती है। हो गई मम्मी पापा ठीक है? हाँ मैं उनसे बोल दूंगी, पर आप एक बार तो बोल के आइए। ये मैं बोल चाची, हाँ बेटा बोल तो रही थी, बैंगलोर जाने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है वहाँ? नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, आप चलो, साथ में रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कह रही है तो ठीक है। लोग पहुंच जाती है और वहाँ पर रहने लगती है, घूमना फिरना खाना पीना सब लोग एक साथ हैं, और उसके बाद देखते हैं हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या बातें होती है। आज खाना खाएंगे तो मम्मी पापा से मैं बोल दे रही हूँ, वो भी रेडी हो जाएंगे तो हम सब लोग साथ में चलेंगे। अरे क्या मम्मी पापा है टाइम, कभी तुमने टाइम दे दिया करो। तो उनको भी साथ लेके चलेंगे, तो उनका खाना वगैरह मतलब सब लोग साथ में जाएंगे ना, तो उनका भी मन लग जाएगा। उनका खाना मैं यहीं पे पैक करा दूंगा, और वो यहीं खा लेंगे, हम लोग। नहीं आप जाइए, आपको अकेले जाना है, तो मैं अपनी रोटी पापा को साथ लेकर जाऊँगी। चलो ठीक है, मम्मी पापा को भी तैयार कर दो। बेटा जी हम क्या करेंगे तुम्हारे साथ जाके, तुम और बेटा जी जाइए, हम क्या करें वहाँ जाके। नहीं आप लोग भी चलिए, आप लोगों का अच्छा मन रह जाएगा। तुम लोग घुमा जाके, नहीं आप लोग भी चलो, रेडी हो जाइए। बहुत जिद करती रहती है हर बात के लिए। कोई बात नहीं, आप लोग चलिए। जो सासू माँ है उनकी बेटी का यानी कि नंद का फोन आता है सासू माँ के पास। हेलो भाभी जी नमस्ते। और मम्मी पापा कैसे हैं? आप मम्मी पापा से बात करवा दीजिए। हेलो मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी हो? और सब कैसे हैं? सब ठीक है, और पापा जी कैसे हैं? अच्छे हैं। और आप लोगों ने खाना पीना खा लिया? हाँ अरे बहुत थक गए हैं यार, हम घूम के आए थे बैंगलोर। आप लोग झूठ बोल रहे हो, भैया भाभी तो आपको कहीं घुमाते भी नहीं होंगे। नहीं बेटा ऐसी तो गलत सोच रही है, बहू तो मुझे बेटी जैसी मिली है। अरे नहीं नहीं, काम नहीं, बहुत बहुत केयर करती है हमारी। ठीक है, आप लोगों को देखने आऊंगी। ठीक है बेटा, जल्दी आना। ठीक है। Here is a tongue twister for the students for their refreshment. Okay, so I'm going to tell a tongue twister to you all. एक टंग ट्विस्टर मैं बोलने जा रही हूँ, और आप में से कोई एक ऑडियंस जो है वो रिपीट करेगी 5 बार उसको, और इट्स अ फन गेम जस्ट फॉर योर रिफ्रेशमेंट। ओके ओके, शुड आई से? पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पिंकू पकड़े पका पपीता। हु इज गोइंग टू कम? पका पेड़िया पका पपीता, पके पेड़ को पिंकू पकड़े पका पपीता। पके पेड़ पका पपीता, पका पेड़ पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू पकड़े पका पपीता, पका पेड़ पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू पकड़े पका पपीता, पका पेड़ पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू पकड़े पका पपीता, पका पेड़ पका पपीता, पका पेड़ पका पका पेड़ पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू पकड़े पका पपीता।